Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate a very interesting story, The Great Philosopher Socrates. The Great Philosopher Socrates is written by Rhoda Dolores Lepore Power. In Altrincham, Cheshire, she was born on 9 March 1957 in London. She was a broadcaster and children's writer. About 400 years before, Socrates lived in Athens. He was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes as a boy. He was always rather shabbily dressed because his father was a poor stone cutter. शेबिली मीन्स गंदे तरीके से जो ड्रेसेस पहनता था सोक्रेटिस, वो अच्छे ढंग से नहीं पहनता था, गंदी ड्रेसेस उसकी होती थी क्योंकि उसके फादर क्या थे, गरीब स्टोन कटर थे. He went to school like other boys of his age. He learned science, maths and a little about the stars, but he didn't like to learn history and geography. He was a thoughtful child. He watched carefully his companions all the time and noticed everything. वो thoughtful बच्चा था और बड़ी carefully जो उसके साथी जो कुछ भी करते थे वो उसको बहुत carefully notice करता था. अन्य बच्चों की तरह से वो भी स्कूल गया और उसने साइंस, मैथ्स और स्टार्स के बारे में जो है पढ़ाई करी, लेकिन उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पसंद नहीं था. Socrates didn't want to be rich. As he grew older, he thought very little of bodily comfort and pleasures. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. लाइफ में जो है कंफर्ट को उसने पसंद नहीं करा, जो भी प्लेजर्स थे उनको उसने पसंद नहीं करा और अपना सारा ध्यान किस पर दिया, जो नोबल, ऑनरेबल और जस्ट चीज़ें थी उन पर अपना ध्यान लगाया. Socrates talked to the people and soon he became a familiar figure for Athenians. His friends said to see him, "Yes, that's Socrates." They came along and talked to him for hours. Socrates became famous as a teacher. After some time, he stood in the marketplaces, talking to anyone who cared to greet him. They had argued with him and answered his questions and confused totally. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. Actually, by using his reason, he would have the power to see what was right, just, beautiful and true, and shape his own conduct. उन्होंने क्या कहा, लोग उनसे बात करने आते थे, बड़े फैमिलियर, बड़े फेमस वो सबके साथ में हो गए थे. लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और वो उनका आंसर भी करते थे. जो भी लोग उनसे बातें करते थे उनका सुकरात जो है बहुत अच्छे ढंग से आंसर करते थे. उन्होंने क्या कहा कि लोगों को जो है अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से कुछ ना कुछ उनको सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या देती है, जब हम अपने आप से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम एसेस करते हैं कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, कौन सुंदर है, कौन कैसी है, और फिर हम उस पर बेस जो है अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone that this could only happen if every citizen would educate his own mind to see what was right and noble. He believed that questioning and discussing would help to do the same. So he talked in the open streets. उनको क्या विश्वास था कि जब हम ओपन में आपस में डिस्कस करते हैं, एसेस करते हैं, जज करते हैं चीज़ों को, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो राइट डिसीजन है उसको ले सकते हैं. और इस तरीके से हर जो नागरिक है उसको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए. इसलिए वो ओपन स्ट्रीट्स में लोगों के साथ में डिस्कशन किया करते थे, बातें किया करते थे. द फेम ऑफ सॉक्रेट्स हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, सो मैनी रिचर्स फेल्ट honored to have him as their guest.
A group of people gathered around him and followed him wherever he went. Plato was a young man who treasured every word what he said. He also became a famous teacher as Socrates. उनका लोग उनसे आते थे, बात करते थे. जो बड़े बड़े धनवान लोग थे वो बड़ा अपने आप को बड़ा ऑनर्ड फील करते थे कि अगर वो उनका गेस्ट बन के आ जाए. तो लोग उनको जो है चारों तरफ से घेरे रहते थे, उनसे बातें करते थे. और प्लूटो जो उनका एक शिष्य था प्लूटो, वो उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन करके अपने पास एक बड़ी प्रॉपर्टी की तरह से, बड़े खजाने की तरह से अपने पास रखते थे, क्योंकि वो आगे जो है क्या बन गए थे, उनके एक फेमस टीचर बन गए थे एज सॉक्रेट्स. Pluto also became a famous teacher as Socrates. Most of the people loved Socrates and delighted in his wisdom, but there are some people who didn't approve him. Socrates taught the people that man's own mind influenced his conduct more than the God. So some people disagreed with this idea, so they thought that he was leading the young generation and filling their minds with doubts. लोगों को क्या लगा कि जो सुकरात जो एजुकेशन देते हैं वो जो यंग पीपल हैं उनको भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि इंसान जो है अपने माइंड से ज़्यादा प्रभावित होता है बजाय भगवान से. तो लोगों को क्या लगा कि वो जो है उनको भ्रमित कर रहे हैं, यंग पीपल जो है उनसे भ्रमित हो रहे हैं. द मेन who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to hide until the storm had blown over. But Socrates knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just and honorable. So he went to the court. His clothes and shoes were dusty, but everyone knew that a noble heart bear under the shabby garment. जो वहाँ की एथेंस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सुकरात को अपने वहाँ बुलाया, और सुकरात को पता था कि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है. उन्होंने तो जो भी शिक्षा दी है वो लोगों को एक उचित न्याय की और सम्मान की शिक्षा दी है, तो उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था. तो जब वो कोर्ट में गए तो उनके जो शूज़ थे वो भी, शूज़ और क्लोथ्स दोनों ही डस्टी थे, धूल से भरे हुए थे. और हर कोई जानता था कि इन शेबी गारमेंट्स के अंदर एक नोबल हार्ट है. ही टोल्ड द एथेनियंस दे विल गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. आई कैन डाई मैनी डेथ्स फॉर वट ही बिलीव्ड टू बी राइट. उन्होंने क्या कहा कि सही के लिए, सत्य के लिए मैं ऐसी कई मौतें मर सकता हूँ, कई बार मर सकता हूँ. द जजेस लिसन टू हिम, questioned him, condemned him to death. The old man, Socrates, made no complaint, and he leaned on his stick, looking around the crowded courtroom. He told Plato and his other pupils, no evil can happen to a good. जब उनको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने क्या था, कोई भी कंप्लेंट नहीं करी. और प्लूटो से उन्होंने क्या कहा कि जो अच्छा होता है, अच्छाई को कोई भी बुराई नहीं मार सकती है, अच्छे के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता. आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ सो बी ऑफ गुड चीयर. जीवन के बाद भी और जीवन से पहले भी, जीवन में भी कुछ भी उनके साथ, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता, इसलिए खुश रहो. आई हैव टू गो, वी गो आवर वेज, I to die and you to live. उन्होंने क्या कहा कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवन जीने के लिए. Then the soldiers came and took him away to prison. His wife with the 3 children followed him. Many of his favorite pupils were also with him. They talked to him and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. They were sad because they knew that Socrates would die soon. जब वो जा रहे थे तो सुकरात के अंदर जो जितने भी लेसन्स थे अच्छे, वो उन्होंने उनको सिखाए, नई सीख जीवन की उनको दी. वो लोग दुखी थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब सोक्रेट जो है बहुत जल्दी मर जाएगा. In Athens, when people were condemned to die, they were given a cup of poison.
Socrates knew that and nodded the jailer, who looked at him sadly, saying, "You, Socrates, whom I know to be the noblest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison." उस समय एथेंस में जब किसी को मारा जाता था तो एक कप देते थे पॉइजन का, जिसमें जहर भरा हुआ होता था। तो जिस समय जेलर उनको दे रहा था तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी कि मुझे उम्मीद है कि मैं जब तुम्हें ये कप दूंगा जहर का पीने के लिए तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे। May the God prosper my journey from this to the other world, said Socrates, and lifted a cup of poison to his lips. Soon the room was filled with the sound of weeping. उन्होंने क्या कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यात्रा जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मैं जा रहा हूँ वो अच्छी हो, प्रॉस्परस हो। और फिर उसके बाद उन्होंने वो कप लिया और पॉइजन पी लिया। जितने भी लोग रूम में थे वो सारे रोने लगे। तो देखा बच्चों आपने कि जो नोबल हार्टेड पीपल होते हैं उनके जाने पर सबके ऊपर बुरा असर पड़ता है, सब लोग उनके लिए रोते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको हर कोई चाहता है कि हमारे बीच में रहें। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।